Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 14th B of class 10th mathematics, chapter name circle. So let's start the video from first question. In figure 14.65, triangle ABC, AB is equal to AC, AB is equal to AC and XY parallel to BC. Prove that BCYX BCYX is a cyclic quadrilateral. By the property of cyclic quadrilateral, we know that sum of opposite angle of a cyclic quadrilateral is equal to 180 degree. Means if we can show angle B plus angle Y is equal to 180 or angle C plus angle X is equal to 180, it's mean we can say that BCYX as a cyclic quadrilateral. So let's see the solution of question number 1. Suppose it is your question number 1 figure already given in your book. Point A, vertices B and vertex C. Clear? Now XY parallel to BC. Clear? It is given that XY parallel to BC. So we can apply the properties of parallel line. Here angle AXY given AB is equal to AC. AB is equal to AC. It is already given. Means AB and AC are equal. AB and AC are equal. It's mean angle B and angle C are equal. So we can say that angle B, only B is equal to angle C. Clear? It is your question number 1. Okay, one part. And by the property of parallel lines, and it is given that XY is parallel to BC. Means angle YXB or BXY, such angle BXY, angle BXY plus angle B is equal to 180 degree, because we know that sum of two co-interior angle is equal to 180 degree. These two lines are parallel, so such angle is called co-interior angle, and we know that sum of co-interior angle is equal to 180 degree. Now here from equation number 1, it is clear that angle B is equal to angle C, so we can write here angle BXY plus angle C is equal to 180 degree. Okay, angle BXY plus angle C is equal to 180 degree. Means X plus Y, just opposite angle of a quadrilateral, is equal to 180 degree. Similarly we can show that angle B plus angle CYX is equal to 180 degree. It is obvious, clear that sum of all four angles of a quadrilateral should be 180 degree. Means B plus C plus CA plus CA is equal to 180. Already sum of two angle is 180 degree. Means rest of sum of two angle is also equal to 180 degree. It's mean BCYX is a cyclic quadrilateral. It is a cyclic quadrilateral. Clear? बस यही शो करना था. एक बार इसको देख लीजिए क्या क्या काम इस क्वेश्चन में किया गया है. सबसे पहला काम, गिवन AB इज इक्वल टू AC, मीन्स साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी सेम होगा, क्योंकि इक्वल साइड का अपोजिट एंगल आपका सेम होता है.
अच्छा, और एक्स वाई पैरेलल है बी सी के, मीन्स सम ऑफ दीज टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स इस एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी एक्स वाई, सिर्फ एंगल एक्स नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एंगल एक्स पे दो तरफ एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, तो सिर्फ एंगल एक्स लिखने से आप ये नहीं क्लियर कर पाइएगा कि किस तरफ का आप एंगल ले रहे हैं। बट एंगल बी लिख देने से तो कन्फर्म है कि सिर्फ यहीं पे एंगल बन रहा है, एंगल सी लिख देने पे कन्फर्म है कि सिर्फ ये एंगल बन रहा है, बट एंगल एक्स नहीं लिखा जा सकता था, इसलिए हमने क्या लिखा, बी एक्स वाई। सो एंगल बी एक्स वाई प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल बी की वैल्यू पुट कर दी गई ना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। सो बी एक्स वाई मीन्स ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्रूफ हो गए। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सम ऑफ अपोजिट एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो अगर इस दोनों एंगल का सम 180 है तो बचे हुए दोनों एंगल का सम भी 180 होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल को ऐड करने पर 360 डिग्री मिल रहा है। तो अगर दो एंगल का सम 180 है तो बचे हुए दो एंगल का भी 180 होगा, तभी 180 प्लस 180 360 मिल जाएगा। तो अगर से इसका सम 180 है और ये मिला के 180 बना रहे, मीन्स बी सी वाई एक्स एज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. In question number 2, figure 14.66 in a quadrilateral ABCD, exterior angle XCD as a exterior angle is equal to interior opposite angle. Means ये एंगल किसके इक्वल है, इसके एंगल के इक्वल है। Prove that quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral। अब हमको ये शो करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो ABCD तो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब हो गया इसके चारों एंगल को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो कितना मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखिए अपोजिट एंगल को ऐड करने पर 180 आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर ऐसा मिल जाता है तब तो ठीक है। जैसे ये एंगल सपोज कर लिया जाए आपका ए है, तो ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ऐसा गिवन है ना कि ये एंगल इसके इक्वल है। ये तो यहाँ पे दिया गया ना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ए। अच्छा, अब देखिए अगर ये एंगल ए है तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। अगर ए है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए ना। तो अब आपको ये एंगल मालूम हो गया इंटीरियर एंगल, और ये इंटीरियर एंगल सपोज किया था ए है। अब अगर हम इस दोनों एंगल को ऐड कर दें तो ए प्लस 180 माइनस ए एंड ए कैंसिल हो जाएगा, दोनों का सम आपको कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री। इट्स मीन वी कैन से दैट एंगल ए प्लस एंगल बी सी डी मीन्स ये एंगल ए प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180। सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बस इतने प्रूफ इस पर भी करना है, तो वो थोड़ा सा आप अपने से करने की कोशिश करिए। जो भी स्टेटमेंट अभी मैंने बोला है उसको आप रिवाइज कर लीजिए, स्लो कर लीजिएगा उसकी स्पीड को चेंज करके, और इसका सोल्यूशन खुद से लिखने की कोशिश करिएगा, बन जाएगा। धीरे धीरे करते करते आप लोग एक्सपर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व आपसे भी होने लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन इन फिगर 14.67। ये फिगर है इस क्वेश्चन नंबर 3 का। PQR is an isosceles triangle with PQ equal to PR. PQR is an isosceles triangle. Isosceles means two sides are equal. With equal PQ is equal to PR. अब अगर ये दो साइड सेम है, ये साइड सेम है ना, तो 100% ये एंगल तो आपका सेम होगा, क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी सेम होते हैं। अच्छा, एक कंडीशन तो आपको यहाँ से आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से मिल गई। अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट QR and intersect side PQ and PR at a point S and T। अब ये सर्किल कहाँ से पार हो रहा है, अ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट Q and R से पास हो रहा है, और PQ PR को कहाँ पे कट कर रहा है, S and T पर रिस्पेक्टिवली। मतलब PQ को कट करता है S पर एंड PR को कट करता है T पर। प्रूव दैट QR पैरेलल टू ST। हमको ये प्रूफ करना है कि QR पैरेलल टू ST है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन का अपोजिट है। ऐसे क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहाँ पे ये कहा गया था कि XY पैरेलल टू BC, देन शो दैट BCYX एज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंड थर्ड क्वेश्चन में ये कह दिया गया है कि QRTS आपके सर्कल के ऊपर है,
if the vertices of a quadrilateral lie on the boundary of the circle, its mean quadrilateral as a cyclic quadrilateral. So you can say that QRTS as a cyclic quadrilateral, and we know that sum of opposite angle of a cyclic quadrilateral is equal to 180 degree. Clear? So let's see the solution of third question. कैसे सॉल्व होगा, पहले इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद उसी फिगर में थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा. ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिगर हो गया. इस तरीके का है. आपसे ये कहा गया था कि पी एस यहां पे लिख देते हैं गिवन पी क्यू इज इक्वल टू पी आर. पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये आपको मालूम है. ठीक है ना. अब अगर से ये इक्वल है तो जाहिर सी बात ये पूरी साइड इक्वल है इसके, तो ये एंगल भी सेम होगा. मीन्स एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर. इट इज योर फर्स्ट कंडीशन. क्लियर? अच्छा, अब देखते हैं इस दोनों एंगल को ऐड करके कितना मिलना है. एंगल एस मतलब एंगल क्यू आर टी, यहाँ पे आ जाइए फ्रॉम फिगर QRTS is a cyclic quadrilateral. ठीक है ना. अगर से ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्या होगा, एंगल R प्लस एंगल QST मीन्स ये एंगल QST इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा होना चाहिए. अब अगर से हम एंगल R की जगह पे एंगल Q रख दें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये क्लियर था ना, दोनों एंगल सेम है, तो एंगल R की जगह हम क्या लिख देंगे, एंगल, या इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एंगल R इज इक्वल टू हम कर दें एंगल, चलिए ठीक है, एंगल R की जगह पे एंगल Q प्लस एंगल QST इज इक्वल टू 180 डिग्री. मीन्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से हमको कंडीशन मिली थी कि ये एंगल प्लस ये एंगल ऐड करने पे कितना बनेगा, 180 डिग्री. बट इस कंडीशन से फ्रॉम इक्वेशन टू क्या मिल गया, ये एंगल और ये एंगल आपका 180 डिग्री है, दोनों का सम. इसका मतलब ये हो गया कि ये तभी पॉसिबल है जबकि ST एंड QR एज ए पैरेलल लाइन. यहाँ पे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, विच इज द फॉर्म ऑफ co-interior angle and it is possible only when ST is parallel to QR. क्योंकि ये पॉसिबल तभी होगा जबकि आपका ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो. अगर से पैरेलल लाइन होगी तभी को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा. को इंटीरियर एंगल कहीं भी बन सकता है बट उनका सम 180 तब होगा जबकि वो आपका पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहा हो, अदरवाइज वो 180 डिग्री से कम या 180 डिग्री से ज़्यादा भी हो सकता है. सो इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन लाइन ST एंड साइड QR आर पैरेलल. क्लियर? तो यही शो करना था, हैंस प्रूव्ड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन इन फिगर 14.68. ये फिगर है AB is a common chord. AB as a common chord of the two circles if AC and AD are diameter. AC and AD are diameters. Prove that D, B and C are in straight line. Prove that D, B, C are in straight line. O1 and O2 are the center of the circle. ये इन्होंने कह दिया कि O1 and O2 center of the circle है. वो बात की बात है. क्वेश्चन बहुत इजी है इसलिए इस क्वेश्चन को हम फिगर में थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहे हैं. बाकी आपको भी उतनी लाइन लिखना है जितना दिया गया, कुछ अलग से काम इसमें नहीं करना है. इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, बट पहले इसको जूम कर लेते हैं. हमें फिगर का काम है इसलिए फिगर से ही मतलब है, बाकी सब चीज़ों से ध्यान नहीं दीजिएगा. अब इसमें करना क्या पहले ये समझ लेते हैं.
इन्होंने कहा है कि ये डायमीटर है और ये डायमीटर है, ये ए बी एज ए कॉमन कॉर्ड है। अगर से ये डायमीटर है, ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन, मीन्स एंगल ए बी सी, ये एंगल, ये डायमीटर हो गई ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, वो 90 डिग्री। क्योंकि एक थ्योरम हम लोगों ने इससे पहले के एक्सरसाइज में पढ़ा था कि एंगल फॉर्म्ड बाय सेमी सर्कल एट द रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल इज राइट एंगल, एंगल फॉर्म्ड बाय द डायमीटर एट द रेस्ट पार्ट ऑफ द सर्कल इज 90 डिग्री। तो अगर ये डायमीटर है तो ये सर्कल के ऊपर कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। सेम एज ए डी एज ए डायमीटर, तो ये भी एंगल आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 प्लस 90 180 मिल रहा है। तो कोलिनियर की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर से दो एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो वो एंगल आपका 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 90 प्लस 90 हो रहा है, तो जाहिर सी बात सी बी डी आपकी एज ए स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। लिखना क्या क्या है, आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला काम तो हम ये लिख देंगे, गिवन ए सी एज ए डायमीटर, गिवन ए सी इज ए डायमीटर। अगर से ये डायमीटर है तो एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सिमिलरली ए डी इज ऑल्सो ए डायमीटर, ए डी इज ए डायमीटर। अब अगर ये डायमीटर है तो एंगल ए बी डी भी आपका ए बी डी एज ए 90 डिग्री। इट इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है ना। अब अगर हम इस 90 को इस 90 के साथ ऐड कर लें तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। मीन्स एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी इज 90 प्लस 90 डिग्री। मीन्स एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी इज 180 डिग्री। अब इसमें देखिए फिगर में कहाँ ये एंगल बन रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं। हाँ देखिएगा, एंगल ए बी सी ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री, प्लस एंगल ए बी डी ये एंगल हो गया 90 डिग्री। दोनों को मिलके कितना हो गया, 90 प्लस 90 एज ए 180 डिग्री। ये 90 90 ऐड हो गया 180 डिग्री हो गया। अब जरा सा फिगर में देखिएगा, अगर हम ए बी सी और ए बी डी को ऐड कर दें तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल सी बी डी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी ना। ये कहलाएगा एंगल सी बी डी इज 180 डिग्री। इट्स मीन बी सी डी एज ए स्ट्रेट लाइन, जो प्रूफ करना है। दिस implies BCD is a straight line. क्लियर। ये हो गया आपका पूरा सोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, कुछ मुश्किल काम नहीं था इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th। इन फिगर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose center is O. AD and BC are perpendiculars to the line XY and AD and BC as a perpendicular to the line XY, ये एक लाइन है, इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। CB meet the center at E, CB meet at the circle at E, ये पॉइंट यहाँ पे E पे कट कर रहा है। प्रूव दैट CE इज इक्वल टू AD। हमको ये शो करना है कि ये लाइन और ये लाइन आपकी सेम है ना। तो सबसे पहला काम तो यहाँ इन्होंने देखिए O एज ए सेंटर शो कर दिया है। तो इस फिगर को जैसा कंप्लीट करते हैं, मीन्स ज्वाइन A टू E। इससे फ़ायदा क्या होगा ज़रा से ये समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो आप लिख दीजिएगा एंगल ECD एज ए 90 डिग्री। क्यों होगा वो आप बता दीजिएगा, क्योंकि बाई लीनियर पेयर है, ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन पे 90 90 मिलकर 180 बनेगा। अच्छा ये सेंटर है, ये डायमीटर है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यस इट इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने इसको देखा है। अब ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपको, 90 डिग्री, क्योंकि ये भी तो स्ट्रेट लाइन है। ये एंगल प्लस ये एंगल 90 डिग्री 180 डिग्री बना देगा। तो यानी कि ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये ऑलरेडी यहाँ पे 90 दिया गया है। तो 100% ये एंगल भी आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना। जाहिर सी बात, 3 एंगल अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के 90 है तो 4th एंगल तो 90 होना ही चाहिए, क्योंकि चारों को ऐड करके 360 मिलना है। तो 90 प्लस 90 प्लस 90 और ये ऑलरेडी 4th एंगल एज ए 90 डिग्री होगा। यानी कि सारे एंगल आपके कितने डिग्री के हो गए, 90 90 90 एंड 90। अब 90 डिग्री का एंगल कहाँ पर बनता है, या तो स्क्वायर में बनेगा
या तो रेक्टेंगल में बनेगा। बट स्क्वायर के बारे में एक कंडीशन ये थी कि हमको सारी साइड भी इक्वल दिखानी थी, बट वो तो क्लियर है नहीं कि यहाँ पे सारी साइड सेम है कि नहीं। तो 100% ये रेक्टेंगल तो है, हो सकता है सारी साइड सेम होगी तो वो रेक्टेंगल कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, बट अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि स्क्वायर है कि नहीं, रेक्टेंगल होगा। इफ AECD एज ए रेक्टेंगल ड्यू टू द इक्वल एंगल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू राइट एंगल, ये रेक्टेंगल में ही होता है, सारे एंगल राइट एंगल रेक्टेंगल के होते हैं, मीन्स इट इज क्लियर दैट AECD एज ए रेक्टेंगल। अब अगर से रेक्टेंगल है तो वी नो दैट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, मीन्स AD इज इक्वल टू CE। बस प्रूफ हो गया, ये तो शो करना, प्रूव दैट CE इज इक्वल टू AD, प्रूव दैट CE इज इक्वल टू AD। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाया जा सकता है, क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, प्रूव दैट AE इज इक्वल टू CD। तो अगर से क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल आपने शो कर दिया तो अपोजिट साइड तो सेम हो ही गई, यानी कि आपने CE और AD को तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रूफ कर दिया। एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे तो आप शो कर सकते हैं कि CD इज इक्वल टू AE। और रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, मींस AC इज इक्वल टू DE। यानी कि इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन और बन सकते थे। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि CE इज इक्वल टू AD, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा ये हो सकता है प्रूव दैट AE इज इक्वल टू CD, तो अगर ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड सेम हो गई। और तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर से रेक्टेंगल है तो इट्स डायगोनल आर आल्सो इक्वल, मींस AC इज इक्वल टू ED। तो इस एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन और बनाए जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किससे यही पूछा जाए, बदल के भी दोनों पार्ट पूछे जा सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल तक तो आपको प्रूफ करना होगा, बताना होगा क्यों रेक्टेंगल है, क्योंकि सारे एंगल राइट एंगल बन रहे हैं। और उसके बाद रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से आप बता सकते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होगी एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो ये क्वेश्चन ईजी था, अपने से इसको बनाने की कोशिश करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर ये 14.70 AB एंड CD आर पैरेलल कॉर्ड, AB एंड CD पैरेलल है। देखिए पैरेलल से क्या क्या कंडीशन आपको मिल गई कि हमको ये मालूम हो गया ये एंगल और ये एंगल सेम है ड्यू टू अल्टरनेट एंगल, ये तो पैरेलल साइड की प्रॉपर्टीज होती है ना, ये दोनों एंगल सेम हो गए। पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल हुज डायमीटर इज AC, AC डायमीटर है, सेंटर O है, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। आपको ये शो करना है कि ये और ये आपका सेम है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं ना। अच्छा, इससे आपको क्या मिल जाएगा, इस इतने काम करने से हमको क्या बेनिफिट होगा इसके बारे में समझ लेते हैं। पहले एक प्रॉपर्टी हम लोगों को ये मालूम है कि अगर से साइड इक्वल मिल जाए और कुछ एंगल मिल जाए तो हम वहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल कंप्लीट हो गए। फर्स्ट ट्रायंगल एज ए ABC, ये ट्रायंगल है ना ABC, यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABC, एंड एक ट्रायंगल है ADC, ये दो ट्रायंगल है, इसी दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट शो करना है। अगर से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम करस्पॉन्डिंग पार्ट को कंपेयर कर देंगे, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा सोल्यूशन। अच्छा, अब इसमें देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का यूज हम कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी पहले ये समझ लेते हैं। एंगल B एंड एंगल D, ये दोनों एंगल सेम होंगे और दोनों इक्वल टू 90 डिग्री होंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज AC एज ए डायमीटर एंड इट इज क्लियर वी नो दैट diameter formed right angle at the rest part of the circle. So AC is diameter, AC is a diameter, इसको आप अलग से रीजन वाले ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। अगर से डायमीटर है तो क्या कंडीशन मिलेगी हमको, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। एक कंडीशन होगी ना कि डायमीटर के एंगल सेम होते हैं। अच्छा, AC एज ए कॉमन, AC इज इक्वल टू AC, ये तो कॉमन साइड है, दोनों में आ रही है। अगर ये कॉमन साइड है तो सेम तो होगी ना, AC इसकी भी एक पार्ट है उसका भी एक पार्ट है। और कोई एंगल और सेम हो रहा है, ये एंगल आपका सेम हो रहा है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। देखिए ये अल्टरनेट एंगल है ना, यहाँ पे लिख देते हैं अल्टरनेट एंगल। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लग रही है,
दो राइट एंगल बन रहा है तो ये मत सोचिए कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड लगा देंगे, क्योंकि साइड तो सिर्फ एक इक्वल है, हाइपोटेनस सेकंड साइड को तो हमको दिखाना है। तो अब देखिएगा ये दो एंगल सेम है, यहाँ पे एंगल लिख देते हैं, बल्कि इसको आप अगर यहाँ पे लिख दीजिए तो बेटर है, यहाँ पे लिख दीजिएगा बेटर है, ठीक है ना। अच्छा, दो एंगल सेम है, एंगल एंगल और एक साइड सेम है, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी क्या लगेगी, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो जाएगी ना। तो अगर से ये कॉन्ग्रुएंसी है तो आप ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब यहाँ पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने ए बी सी किया है तो अब सी डी ए करेंगे, सी डी ए ये कॉन्ग्रुएंट होगा। अब अगर से ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CPCT means corresponding part of congruent triangles, CPCT, we can show that AB is equal to CD. By CPCT AB is equal to CD, यही शो करना था, ऐसे ही ना, show that AB is equal to CD, that's all, it's your solution completed. It is clear? Now next. Question number 7. In figure 14.71, APB and CQD are straight line through the point of intersection of two circles. Prove that AC parallel to BD, angle CPD is equal to AQB. ये शो करना है कि दोनों एंगल सेम है। आइए पहले इसका फिगर देख लेते हैं, किस तरीके का फिगर दिया गया, उसके बाद आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, ये फिगर है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, APB एंड CQD आर स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है P एंड Q, जो कि दोनों सर्किल का एक एज ए कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे दोनों सर्किल कट कर रहे हैं और ये आपको फिगर है। प्रूव दैट AC पैरेलल टू BD, हमको ये शो करना है AC पैरेलल है BD के। तो पैरेलल के लिए या तो हम अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी शो कर दें कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, या तो को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी शो कर दें कि को इंटीरियर एंगल का सम 180 है, तो भी आपका काम हो जाएगा। अच्छा, पहले देखते हैं इस फिगर में APQC, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। तो ये एंगल सपोज कर लेते हैं x है, ये x है ना, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना। तो ये एंगल भी x होगा क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये एक्सटीरियर है। अच्छा, इसी तरीके से इस फिगर में आ जाते हैं, PQDB भी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर ये x है तो ये कैसे मिलेगा, ये तो सम ऑफ दोनों को इंटीरियर वो इंटीरियर एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस x, हो गए। तो अब अगर इस दोनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो हमको 180 मिल जाएगा, मीन्स ये x है तो ये 180 माइनस x करके मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, अब देखिए एंगल A प्लस एंगल B क्या मिलेगा, एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A कितना है x प्लस 180 माइनस x, मीन्स इस दोनों एंगल को अगर हम ऐड कर दें तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, 180 रिजल्ट आएगा। मीन्स वी कैन शो दैट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इज द फॉर्म ऑफ को इंटीरियर एंगल। ये दोनों एक ही लाइन के अंदर की तरफ बनने वाले एंगल है ना, विच इज द फॉर्म ऑफ को इंटीरियर एंगल। एंड इफ द सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इट्स मीन AC एंड BD आर पैरेलल लाइन्स। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन AC इज पैरेलल टू BD। ये तभी पॉसिबल होगा जबकि को इंटीरियर एंगल जो लाइनें बना रही है वो दोनों लाइन कैसी हो, पैरेलल हो। तो बस ये तो शो करना था, शो दैट AC पैरेलल टू BD। तो एक काम तो आपका हो गया, ये स्टेटमेंट आपको लिखना होगा, सिंस एंगल A इज plus angle B is equal to 180 degree, which is the form of co-interior angle, and it is possible only when AC parallel to BD. That's all. Now second part, prove that CPD अब हमको ये शो करना है कि CPD ये एंगल, मीन्स इसको ज्वाइन करना होगा यहाँ पे, तब यहाँ पे एंगल बनेगा, इज इक्वल टू AQB, इसको भी ज्वाइन करना होगा, तो यहाँ पे एंगल बन जाएगा और ये एंगल बन जाएगा। इसके लिए फिगर को ड्रॉ करना होगा, ये फिगर ड्रॉ कर लेते हैं किस तरीके से बनेगा। ओके, इस तरीके का कुछ आपका डायग्राम बना हुआ था, हमको शो करना है एंगल CPD, मीन्स पहले इसको ज्वाइन कर दें C to P, C
P और ये एंगल आपका D है। यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, शो दैट एंगल CPD इज इक्वल टू एंगल AQB। अब जैसे AQB को भी ज्वाइन कर देते हैं तब समझ में आएगा कहाँ से कहाँ तक एंगल हमको इक्वल दिखाना है। एंगल AQB ये है ना। अच्छा, अब देखिएगा आपसे ये कहा गया शो दैट CPD ये पूरा एंगल इज इक्वल टू ये पूरा कंप्लीट एंगल। अब जरा से एक चीज समझिएगा, एंगल CPD क्या है। एंगल C यहीं पे लिख देते हैं, एंगल CPD इज इक्वल टू सम ऑफ टू एंगल। कौन कौन से, एंगल CPQ है ना, ये किसके किसके इक्वल है, एंगल CPQ के, एंगल CPQ प्लस एंगल DPQ, ये एंगल मिल रहा है दो एंगल को ऐड करके। अच्छा, अब अगर हम CPQ एंगल को देखें तो ये CPQ ये एंगल है ना, ये एंगल किस आर्क से बन रहा है, ज़रा सा इसका ध्यान दीजिएगा। ये हटाइए, इसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया जाए, कोई फ़ायदा नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा। एंगल CPD इज इक्वल टू अब देखिए ये पूरा एंगल हम इस फिगर में बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल CPD, ये पूरा एंगल इज इक्वल टू ये एंगल प्लस ये एंगल। इस दोनों एंगल को ऐड करके अगर 180 से माइनस कर दें तो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए एंगल CPD के, यानी कि 180 माइनस इसको थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि सारी चीज़ें इसमें दिखती रहे। 180 माइनस एंगल PCQ प्लस एंगल PDQ, ये ठीक है, ये बेटर है, इतने से हमारा काम हो जाना चाहिए। अच्छा, 180 माइनस रहने दीजिएगा ऐसे ही। अब जरा से देखिएगा PCQ, ये इस आर्क से, ये आर्क है ना एक, इस आर्क से यहाँ पे एंगल बन रहा है PCQ, ठीक है ना। किससे आर्क बन रहा है, आर्क PQ से। यही एंगल इक्वल होगा इसके, ये एंगल और ये एंगल आपका सेम होगा, क्योंकि ये भी एंगल PQ आर्क से बन रहा है और ये भी एंगल आपका PQ आर्क से बन रहा है, यानी कि जहाँ पे PCQ था वहाँ पे हम PAQ लिख सकते हैं, एंगल PAQ। इसी तरीके से इस आर्क से कौन सा एंगल बन रहा था, एंगल D, पॉइंट D पे देखिए PDQ, ये एंगल बन रहा है ना इस आर्क से, और इसी आर्क से पॉइंट B पे भी बन रहा है, यानी कि हम लिख सकते हैं PBQ, ये एंगल, ठीक है ना। अब इसको चेंज करने से फ़ायदा क्या है हमारा, ज़रा से ये समझिएगा। अगर से इन ट्रायंगल AQB, इस ट्रायंगल में से ये एंगल